ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਆਲ। ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ 2 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੇਵ ਜੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। जी जी ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ भी ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆ। देखिए अमन जी, पहली तो ये चीज है क्योंकि बिल्कुल मैं भी उनकी फोटोज वीडियोस न्यूज सुबह से न्यूज चली हुई है देख रहा था कि इतने अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, तो बहुत लोगों के मुझे ऑलरेडी फोन आ चुके थे कि डॉक्टर साहब ये तो इतने फिट हैं, इन्हें ऐसा कि तो ये जो एक्सटर्नल बॉडी है और इंटरनल फिटनेस है, दीज आर 2 टोटली डिफरेंट थिंग्स। हमें नहीं पता कि जो बाहर से इतनी अच्छी मसल्स, इतनी सुडौल बॉडी दिख रही है, उनका दिल, लीवर, किडनी किस तरह से काम कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज जो ये इनकी डेथ हुई है वो शायद जितना मैंने अभी पढ़ा है वो इसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। अभी हमें श्योर नहीं है कि वो हार्ट अटैक था कि क्या था, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ यानी कि ठीक ठाक दिल ने अचानक से काम करना बंद कर। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, मगर उसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि जिसे हम कहते हैं एरिथमिक डेथ की। यूजुअली हमारे जो नॉर्मल लोगों का दिल एक नियमित ताल में धड़कता है, रेगुलरली धड़कता है, पर कई बार कई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बोल दीजिए कि हमारा दिल रेगुलर तरीके से नहीं धड़कता है, अचानक से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत घट जाती है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। तो ये भी अभी हमें एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि सडन कार्डियक डेथ का कारण हार्ट अटैक था या कोई एरिथमियाज थे। जी ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ, ਖੇਡੋ ਕੁੱਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि बहुत सी आजकल यंग डेथ ड्यूरिंग जिम या कोई शादी पार्टी में डांस करते हुए डेथ की वीडियोस काफी सामने आ रही है। तो उसका देखिए एक तो चीज आपने कही कि खेलते हुए जो कि सपोजिटली हम डॉक्टर कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, वो करते करते हुए भी डेथ आ रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका हार्ट वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कितना फिट है। तो एक तो मैं सब लोगों से ये विनती करूंगा कि आपने अचानक से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देनी है कि आप अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, कल से आप सोचें कि मैं बिल्कुल फिट हो जाऊं, अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लग जाए। इट हैज टू बी इन अ ग्रेजुअल मैनर कि आपने धीरे धीरे करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना है। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने हार्ट का चेकअप एटलीस्ट साल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी डेथ जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक से हो, क्योंकि हार्ट अटैक होता है जब हमारे दिल की नसें जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। पर कई कारण, एक चीज होती है हमारे दिल की जो मांसपेशी होती है, मसल्स होती हैं, वो बहुत थिक हो जाती हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हम इस कंडीशन को बोलते हैं। वो एक बहुत कॉमन कारण होता है सडन कार्डियक डेथ ऐसे होने का। तो उसका हम
इजीली अपना पता लगा सकते हैं अगर हम एक सिंपल सा टेस्ट करें जिसे कहते हैं हम इकोकार्डियोग्राफी। तो मैं सारे नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग जिम या कोई भी स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी आप करें तो प्लीज अपने डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार प्लीज मिल लें, सो दैट वो आपको बताएं कि हाँ वेदर योर बॉडी इज फिट टू डू दैट फिजिकल एक्टिविटी और नॉट। और एक मैं और बात ऐड करना चाहूंगा कि कई बॉडीज में हमारे पास, मेरे पास भी एक हार्ट अटैक का केस आया था। वो मैराथन रनर थे, 42 किलोमीटर दौड़ने वाला इंसान, 42 साल का, उससे भी हार्ट अटैक आया। तो कई बार ये जो हमारे हाथ में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि अपना खान पीना, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, इन सबको लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पर एक चीज जो हमारे हाथ में नहीं होती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जीन्स। कईयों की बॉडी में जीन्स ऐसे होते हैं कि दे आर एट मोर रिस्क फॉर दीज हार्ट डिजीजेस एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये भी एक कॉमन कारण होता है यंग इंडिविजुअल्स में हार्ट की बीमारियां होने ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा अमन जी आपने, क्योंकि आजकल जिम्स आज देख रहे हैं कि हर एक गली में जिम खुला हुआ है। तो वी कैन नॉट हैव सर्टिफाइड ट्रेनर्स, हर एक जगह सर्टिफाइड कोच ट्रेनर्स नहीं हो सकते जिनको अच्छी नॉलेज हो कि यार क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जिम वाले ये मेक श्योर करें कि एक ऐसे इंसान को ट्रेनर बनाएं जिसे बेसिक नॉलेज हो। एक मेन चीज जी सडन कार्डियक अरेस्ट, तो एटलीस्ट वहां के स्टाफ को सीपीआर करना तो आना चाहिए कि जब तक वहां पे मेडिकल हेल्प ना पहुंच जाए तब तक एटलीस्ट वो बेसिक सीपीआर करके इंसान की जान बचा सके। दूसरी चीज, कोच सिर्फ आजकल युवा भी हमारे कोचेस के पास जाके यही कहते हैं कि सर हमें तो बस अच्छी मसल चाहिए, वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो कोचेस को भी उनके प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए। दे शुड बी नॉलेजेबल इनफ कि वो बताएं कि भैया सिर्फ आपको वेट ट्रेनिंग नहीं, कार्डियो भी एक चीज होती है। कार्डियो यानी कि जिससे हार्ट की आपकी एक्सरसाइज हो, वो भी जरूरी है। प्रॉपर वार्म अप, वार्म डाउन क्या होता है, तो ऐसे कोचेस का होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा भी हो तो काफी जिम डेथ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਰਮਲ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। नहीं वैसा अमन जी, ऐसी तो सिर्फ 2-3 कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिकली जिसमें हम कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। वो इकोकार्डियोग्राफी से पता चल सकता है। पर जिम और जनरल एक्सरसाइज जो आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि जो यूजुअली वॉक करते हैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक फास्ट में, कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसमें यूजुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस ये होगा कि क्योंकि आजकल हमारे आईटी प्रोफेशनल कोई रात रात भर काम कर रहे हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो कहीं लोग ही हमारे पास डॉक्टर साहब हमारे पास तो वॉक करने का टाइम ही नहीं है। तो मैं ही उन्हें कहता हूँ कि भैया आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहां पे तो आप सुबह दोपहर रात जब मर्जी जाके एटलीस्ट ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर कुछ ना कुछ करिए। मगर हमें अपनी बॉडी हमें जो सिग्नल देती है, क्योंकि यूजुअली हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है पर हमें उसे इग्नोर करते हैं। अगर हमारी बॉडी हमें कह रही है कि नहीं हम इस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई चलने में आपको थकावट हो रही है, छाती में जकड़न हो रही है, कभी धड़कन महसूस हो रही है, तो एटलीस्ट हमें अपनी जो लिमिट्स हैं उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आए तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। ਜੀ ਮੁਨੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰੋ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये जो सो कॉल्ड सप्लीमेंट्स होते हैं और ये स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिसे हम कहते हैं, वो क्योंकि लोग आजकल शॉर्टकट्स चाह रहे हैं हर चीज़ में कि 6 महीने में हमारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाए, तो वो नेचुरली हो ही नहीं सकता है। इट टेक्स परसिस्टेंस कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी होगी, अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा, तभी ये होगा। पर आजकल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट, स्टेरॉइड, 100 तरह के इंजेक्शन, कोई स्पेसिफिक डाइट, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डैमेज करेगी करेगी। आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करें और साथ में अपने खाने का नॉर्मल, जो हमारे आजकल भी गाँव में पहलवान लोग होते हैं, वहाँ पे कितनी अच्छी बॉडीज उनकी होती हैं, तो वो कोई सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, कोई हाई फाई डाइट यूज नहीं कर रहे हैं, वो वही अपना नॉर्मल डाइट से वैसी बॉडी बना ले रहे हैं। तो ये शॉर्टकट जो इंसान आजकल चाह रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ਜੀ ਅਮਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि पहले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग 95-95, 100-100 साल जिए हैं, उन्होंने खूब दूध, घी, लस्सी सब कुछ खाया पिया है। मगर आपको ये भी एक चीज़ तो ये करनी होगी कि उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल हमारे मुकाबले ज़्यादा था। हम सुबह से शाम बस कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो हमारा एक तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है, हम उस खाने को पचा नहीं पा रहे हैं, एक चीज़। जी दूसरी चीज़, जो उनको प्योर चीज़ मिल रही थी, वो हमें नहीं पता है। जो हमें सो कॉल्ड देसी घी या दूध बाजार में मिल रहा है, वो अडल्ट्रेटेड है कि वो प्योर है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक ये कारण है। पर मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि आप दूध, दही, लस्सी लीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा घी की आप पराठे भी खा रहे हैं, उसके ऊपर व्हाइट मक्खन, वो चीजें ऑब्वियसली आपको अवॉइड करनी है। पर ऐसा नहीं है कि आपने दूध, दही, लस्सी बिल्कुल अपनी डाइट से बंद ही कर देना, बिकॉज हमने सिर्फ दिल को और दिल की नसों को ही फिट नहीं रखना है, हमने हमारी बॉडी में बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, उन सबको भी हमें फिट रखना है। तो उसके लिए दूध, दही आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। पर हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा होगा, दूध होगा, कुछ भी होगा, मीठा होगा, नमक होगा, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो हर चीज जो होनी चाहिए वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਣਾਅ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट कारण मैं मानता हूँ स्ट्रेस को आजकल, क्योंकि आजकल की लाइफ में मैं वही ओपीडी में पेशेंट्स को बता रहा होता हूँ कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ दीज डेज। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। मगर वही है कि जो इंसान इस स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाए, हमें मैनेज करना आना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में डूब के हम अपने और नुकसान करते जाएं। हमें स्ट्रेस की मैनेजमेंट आनी चाहिए कि कैसे स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने नहीं लाने हैं, थोड़ी कोई अपनी हॉबी में लगिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में अच्छी नींद, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद का होना भी बहुत जरूरी है, जो आजकल की मैक्सिमम हमारी यंग जनरेशन नहीं कर पा रही है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? बहुत बड़ा कारण आजकल तो इसके भी डी एडिक्शन के प्रॉपर प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे पहले नशे को छुड़ाने की वो होता, तो ये भी एक तरह का नशा हो गया है। स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। तो अगर इंसान इसमें ही लगा रहेगा तो आपकी मानसिक संतुलन खराब होगा ही होगा, और आप में स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कोई पीयर प्रेशर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्योंकि यूजली सोशल मीडिया पे लोग अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसने ये अचीव कर लिया, उसने ये कर लिया। नेगेटिव चीजें ऑब्वियसली कोई दिखाना नहीं चाहता है। तो एक चीज तो स्क्रीन टाइम हो गया, दूसरा इन चीजों के कारण जो फॉल्स
इमेज जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण लोगों में पीयर प्रेशर भी बहुत आ रहा है कि यार मैंने तो ये अचीव नहीं किया, तो अननेसेसरी स्ट्रेस लोग ले रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत ज़रूरी है अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए। ਜੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨੀਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ First of all, I'm really sorry for the loss of the said person. So इनके ना कई कारण रहते हैं. जी. तो मोस्टली पब्लिक में जो मोस्ट कॉमन कारण जाना जाता है वो जाना जाता है कि हार्ट अटैक हो गया है. हार्ट अटैक के अलावा भी हार्ट सडन इसको कार्डियक अटैक बोलते हैं, उसके और भी कारण रहते हैं. उसके अंदर दिल के धड़कन के में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो सकता है और भी बहुत कारण होते हैं. तो मोस्टली जो हार्ट का रहता है वो जो डेथ होता है वो एक पंपिंग कम होने की वजह से या उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई खराब होने की वजह से. तो जो आजकल जैसे आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग जिम जा रहे हैं और हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं. साउथ में भी एक फेमस एक्टर का रिसेंटली डेथ हुआ था. वो भी काफ़ी जिम जाते थे एंड ही वाज आल्सो क्वाइट फिट, तो उनका भी सडन डेथ हो गया. तो एक तो कारण होता है कि जो आपका खान पीन का कारण रहता है. जो आप खाना जो खाते हैं तला हुआ खाना खाएंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपना ब्लड चेकअप रूटीन में करवाया नहीं होता और उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो शुगर से जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है उसके से ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट का. दूसरा कारण ये है कि ये जो ब्लॉकेजेस जब होते हैं तो आपका एकदम से ब्लॉक फट के अचानक से मेजर अटैक आ जाए तो उसकी वजह से एकदम से जानलेवा हो सकता है. स्पेशली जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है. दूसरा ये है कि जो आजकल लोग क्या है अपना जिम वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. वो प्रोटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं जी. और उसके साथ प्रोटीन पाउडर के साथ जो इलिसिट जो हम स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर आता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एथलीट हार्ट जो हम कार्डियोलॉजी में बोलते हैं. उसमें हार्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मोटा हो जाता है और जब हार्ट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है क्योंकि मसल मास बढ़ जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन खराब हो जाती है. इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन खराब होने से हार्ट दिल का धड़कन नॉर्मल नहीं रहता है और वो फटकने लग जाता है. उसकी वजह से एकदम से डेथ हो जाती है. तो ये दो मेजर कारण हैं जो डेथ होती है नॉर्मली. या तो हार्ट की जो रक्तनालियाँ हैं उसमें ब्लॉक हो गया या दूसरा जो हार्ट की रिदम है इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए. तो दोनों ही मेजर कारण हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक है यंगर जनरेशन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड रहता है. जी रमनीक जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे साथ डॉक्टर मुनीष जी भी जुड़े हुए हैं कार्डियोलॉजिस्ट ने और दिल के माहिर हैं वो भी. आप इन घटनाओं को जैसे बताया कि आपने जो नौजवान हैं उनमें ज़्यादा आजकल केसेस बढ़ रहे हैं. जैसे डॉक्टर मुनीष देव जी ने ये बताया कि जो जिम जाते हैं लोग सबसे पहले उन्होंने ये देखना चाहिए कि जो जिम का ट्रेनर है वो कितना क्वालिफाई है, कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि कसरत जो है कई बार अगर गलत कर ली जाए तो तब भी प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं. आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो जिम का ट्रेनर है वो क्वालिफाई होना चाहिए? डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है. जिससे भी आप जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई भी बीमारी के साथ जाएंगे, आजकल तो बहुत कॉमन है यू रीड लॉट ऑफ रिव्यूज, आप एक दूसरे से पूछते हैं कि उनको वो कितने ट्रेन है. सिमिलरली जब आप एक तरह से अपने बॉडी बनाने जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज चूज योर जिम ट्रेनर ऑल्सो वाइजली. आप डेफिनेटली अगर वो क्वालिफाइड रहेंगे तो उनको पता होगा कि कितना जो पर्सन आया है वो कितना फिट है, उसको कैसे कैसे धीरे धीरे एक्सरसाइज करा के फिट करने का है. तो डेफिनेटली दीज थिंग्स मैटर. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है सर. जी और इसमें यह भी आप ज़रूर बताएं कि जो इंसान है जिसने जिम ज्वाइन करना है तो क्या उससे पहले मेडिकल चेकअप और डॉक्टरों की सलाह लेनी ज़रूरी है? देखिएगा अगर इसके अंदर ऐसा कोई हमारा पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि जो भी जिम जा रहा है उसको एक डॉक्टर से सलाह लेके जाना चाहिए. बट डेफिनेटली अगर किसी भी बंदे को या बंदी को कुछ भी चलने पे
दर्द होता है छाती में या सांस फूलता है या किसी को भी एकदम से बेहोश हो गए हैं खड़े खड़े काम करते हुए, तो डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको डेफिनेटली जाना चाहिए। बट ऐसे कोई मैं कोई एक जनरल ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ कि 20 साल 25 साल का बंदा वो जिम जाना चाहता है उसको एक बार हार्ट चेकअप कर लेना चाहिए। बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि एक आपका बेसलाइन आपका हार्ट का एक ईसीजी आपके पास हो तो वो हमेशा बेटर रहता है। एक बीपी का चेकअप हो गया हो, शुगर का चेकअप हो गया हो, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कोई भी 25 साल 30 साल का बंदा करवा के रखेगा तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। जी रमनीत जी लाइन पे आप बने रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुनीष जी भी जुड़े हुए हैं। मुनीष ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये है कि डाइट बहुत ज़रूरी है हमारी आजकल, क्योंकि मैंने कहा कि हर चीज़ शॉर्टकट हो रही है, तो खाना भी प्रॉपर खाने का टाइम नहीं है, जिसे कहते हैं फास्ट फूड। ये जी। चलते-चलते खा रहे हैं कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा, तो खाना बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएँ, ये जंक फूड को अवॉइड करें। अपनी डाइट में रोज़ हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स इसको ज़रूर लें, जो बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है हम इंडियंस की डाइट में। और साथ में जो 3 चीज़ें मैं कम करने को बोलता हूँ मरीज़ों को कि नमक थोड़ी अपने डाइट में कम करिए, चीनी कम करिए और तली हुई चीज़ें थोड़ा कम करिए। फिज़िकल एक्टिविटी अपनी कम से कम 25-30 मिनट रोज़ का वॉक आपने करना ही है। और स्ट्रेस की मैनेजमेंट एक बार मैं फिर बोलूँगा यंग इंडिविजुअल्स को, क्योंकि स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक इंडिविजुअल को आना चाहिए। और साथ में ऑब्वियसली साल में एक बार अपना फिजिकल चेकअप, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर, किडनी के टेस्ट और ब्लड प्रेशर की जांच, ये आपने हर साल एक बार जरूर करवानी है। जी बिल्कुल डॉक्टर रमनीक जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਡਵਾइस देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल की यूथ है, न्यू जनरेशन है, माय एडवाइस विल बी आपको अपनी बॉडी फिट रखनी चाहिए। दैट जी। रिक्वायर्स एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ एवरी डे वॉकिंग, दैट टू ब्रिस्क वॉकिंग। सेकंड, आपको अपना डाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के अंदर आपके फल, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन आइदर फ्रॉम नॉन वेज या वेज, दैट शुड बी आपका पूरा रहना चाहिए। और जो तला हुआ है फूड, आई वुड नॉट रिकमेंड फ्राइड फूड बिल्कुल भी। और शुगर जितनी कम हो सकती है, चीनी जितनी कम हो सकती है डाइट में, वो बेटर है। सेकेंडली, जो आपके जो हैबिट्स रहती हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इलिसिट ड्रग्स, एब्सोल्युटली से नो टू इट, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे दोनों ही हानिकारक है। सिर्फ हार्ट के ऊपर नहीं, पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे इनका अफेक्ट आता है। प्लस फोर्थ, जो आजकल मेजर रिस्क फैक्टर चल रहा है वो है स्ट्रेस। तो आपको अपना एवरी डे जो आपका काम का स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, यू हैव टू वर्क आउट कि आप अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, आइदर थ्रू मेडिटेशन, योगा। एंड जो आपका आप रात को फ़ोन पे रहते हैं, यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप, आप अच्छी स्लीप नहीं लेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली यू नीड एटलीस्ट 7 hours to 8 hours ऑफ गुड स्लीप। अपना स्ट्रेस कम करिए लाइफ का एंड एन्जॉय योर लाइफ। फ्रॉम आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, enjoy your life as much as possible, go travel, enjoy your work and have good family time। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। बिल्कुल सही कहा ਤੁਸੀਂ। शुक्रिया डॉक्टर रमनीक, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਪਿਓਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।